So let us begin our Bible study. आइए हम अपना अध्ययन शुरू करें। Before we begin our Bible study, let me also pray along with you. इससे पहले कि हम बाइबल अध्ययन करें, आइए आपके साथ मैं भी मिलकर प्रार्थना करूं। Gracious Lord, speak to us as we humbly come to your feet. अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमसे बातचीत कीजिए जबकि हम आपके चरणों के पास आए हैं। May our meditation of our heart, may the words of our mouth be acceptable in your sight. पिता परमेश्वर, हमारे हृदय का ध्यान और हमारे होठों से बोला गया वचन आपके ग्रहण योग्य होने पाए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Amen. Amen. So in the previous class, we have studied the book of Mark. और हमने पिछले क्लास में मरकुस की किताब का अध्ययन किया था। And today we are trying to understand few things about gospel according to Luke. और आज हम लूका रचित सुसमाचार की किताब से कुछ बातें सीखेंगे। So you need to remember this particular map of Israel, because when we study the gospel revolves around these places. और चूंकि सुसमाचार के दौरान इन क्षेत्रों का उपयोग किया गया है, इसलिए आप नक्शे में जो जगह देख रहे होंगे, इस नक्शे को हम सुसमाचार अध्ययन के समय देखना है। So towards the southern part is Judea, towards the northern part is Galilee. और यहाँ हम देखते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में यहूदिया है और उत्तरी क्षेत्र में गलील है। Samaria is in between Galilee and Judea. और यहूदिया क्षेत्र और गलील क्षेत्र के मध्य में सामरिया क्षेत्र है। So these people of Samaria are the people who compromised with the pagans, and they have spoiled or polluted their own Jewish line. And so the people of Israel in Judah, they don't like to touch them. They don't like to have relationship with them. They will not pass through even their area if they have to go to Galilee. और सामरिया के जो लोग थे वो अन्य देवताओं की आराधना करने वाले लोगों के साथ रहकर अशुद्ध हो गए थे, और इन्होंने यहूदियों की जो जो सेवा है उसको छोड़ दिया था। इसलिए ये लोग अशुद्ध हो गए थे, और इसी कारण जो यहूदी लोग हैं इन सामरिया के साथ संबंध नहीं रखते थे, और वो सामरिया के क्षेत्र से बाहर वो जाकर सफर करते थे। So this northern part is, this blue line is called Dead Sea, and this is the Jordan River. Jordan River. Actually, this comes from the Hermon, Mount Hermon. From Mount Hermon, because of the ice, getting melted and becoming water, that is a source of supply for this Jordan River. Even when you go towards the northern part, towards the Galilean end, this is the Galilean Sea called, maybe something like a small sea, not a big sea. और अब देखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र में जो गलील है उसके पास भी एक समुद्र है, और वहां पे लोग बताते हैं कि हेरमोन की जो पहाड़ है वहां से जो बर्फ बहती है वो पिघल के बाद में यरदन नदी में बह के आती है, और इस प्रकार वो बाकी आगे जाके मृत सागर में भी मिल जाती है। So towards the eastern end, it's called Perea. Perea. So the Lord Jesus Christ used to pass through for all the festivals. He used to come to the Judea, Jerusalem, and then get back to Galilee. और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस पश्चिमी भाग में जो पेरिया क्षेत्र है वहां भी आते थे, और इसके अलावा वो यरूशलेम में भी बलिदान चढ़ाने आते थे, और यहूदिया में भी वो जाते थे। So this you need to remember, because we will be talking about early Judea ministry, and then Galilean ministry, and then Perea, and later Judean ministry. और ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि शुरू से आपने देखा होगा कि जो यहूदिया की जो शुरुआत की सेवकाई थी, उसके बाद गलील की सेवा थी, उसके बाद पेरिया की सेवकाई है, और जो बाद में जो बाद की यहूदिया की सेवकाई है, ये सब आप इस नक्शे से और याद रख सकते हैं। So why I'm trying to explain all these things is, as a preacher, when you are preaching any text owning of any of these four gospels, you should be able to understand the context, how the Lord Jesus Christ is ministering from one place to another place.
how you can get connected from one situation to another situation. You'll be able to do justice in your preaching. और प्रियो, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये नक्शे के द्वारा मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझें कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, ताकि आप सुषमाचार को अच्छी गहराई से समझ सकें, और जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो सुषमाचार का सही न्याय आप वर्णन कर सकें। When the Lord Jesus Christ is performing a miracle, there is a reason behind that miracle. There is a context behind that miracle. So if you miss that context, you'll not be able to interpret that miracle properly and do justice to your preaching. प्रियो, जब आप प्रचार करते हैं तो आपके प्रचार का सही न्याय होने के लिए आवश्यक है कि जब प्रभु यीशु मसीह कोई आश्चर्य कर्म करते थे तो वो क्यों करते हैं, उसके कारण को और उसके संदर्भ को आप सही रीति से जानें। As a right preacher, we will be able to do justice when we expose the text in accordance to the context. और जो संदर्भ के अनुसार जब आप किसी वचन का सही प्रचार करेंगे, तब वास्तव में एक प्रचारक होने के नाते आप सुनने वालों के प्रति सही न्याय करेंगे। No preacher has license to say whatever comes to his mind. We have to simply take out what the author is saying, what is the author's intent, and straight away tell as it is. और किसी भी प्रचारक को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने मन की कुछ भी बातों को बोलता रहे, परंतु जिस जिस विषय के लिए लेखक ने लिखा हुआ है, उस लेखक की उस मानसिकता के अनुसार सीधे उनके विचारों को हम दूसरों को देना चाहिए। But what a preacher is supposed to do is, when the author is talking to the original recipients 2000 years back, the same text, the same context, the same meaning, how it can be applied after 2000 years in this particular context, in this particular culture. That only we need to do the homework. और एक प्रचारक को इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि ये जो वचन का प्रचार है, जो 2000 साल पहले किन्हीं श्रोताओं को विशेष परिस्थितियों में कहा गया था, परंतु आज ये 2000 साल बाद की परिस्थितियां अलग है, लोग अलग हैं, तो इन संस्कृतियों में, इन परिस्थितियों में हम उस विचार कैसे करें, इस बात को प्रचारक को अध्ययन करना चाहिए। So please remember, God's truth does not change. God's truth is same, exactly the same. God does not change. God's truth does not change. और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ना तो परमेश्वर कभी बदलता है, ना ही परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ सत्य कभी बदलता है, ये दोनों कभी नहीं बदलते। Every text will have only one meaning. और प्रत्येक वचन का एक अर्थ होता है। But the same meaning, how do I apply in Andhra Pradesh with the culture of Andhra Pradesh may have some different connotation. Same text, same meaning at Chhattisgarh will have maybe little different because of culture at Chhattisgarh is different from the culture at Andhra Pradesh. But God's truth doesn't change. Same truth, application part, there would be little variation. देखिए प्रियो, वचन का अर्थ तो नहीं बदलता है, परंतु वचन को जब हम उपयोग करने की बात कहते हैं तो वो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए वहां की संस्कृति के अनुसार अलग हो सकता है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुसार वहां के लोगों के लिए अलग हो सकता है। वो उपयोग अलग हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। But here I'm not talking about commands. Command, no change at all. Command says, don't lie, that's it. Nobody, either Andhra Pradesh or Telangana or Chhattisgarh or Uttar Pradesh, anybody, no lies. There is no alteration to that particular command. Commands are exactly the same. 2000 years ago, 4000 years ago, even after 10,000 later. For command, there is no change. But I'm talking about the principles. और प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा कभी नहीं बदलती है, चाहे वो 2000 साल पहले दी गई हो, 4000 पहले साल पहले दी गई हो, या 10,000 साल बाद उसको हम सुने, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कभी नहीं बदलती। अगर परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, तो आंध्र प्रदेश के लोग रहें, चाहे तेलंगाना के लोग रहें, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग रहें, चाहे छत्तीसगढ़ के लोग रहें, उन सब के लिए आज्ञा एक ही है कि झूठ मत बोलो, परंतु सिद्धांत जो है वो अलग हो सकते हैं। For example, love your enemy. जैसे कि वचन कहा है कि अपने शत्रु से प्रेम करो, It is a command. ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। And it is also a principle.
और यहाँ पर एक सिद्धांत भी है। Sometimes wife and husband quarrel so much so that, husband looks at wife as if wife is an enemy. Sometimes आप the देखे wife होंगे also कि looks at her husband as an enemy. They are not enemies. और आप देखे होंगे कि कई बार पति पत्नी भी एक दूसरे से लड़ते हैं, तो पत्नी ऐसे देखती है जैसे कि पति उसका शत्रु हो, या कई बार पति भी ऐसा देखता है कि ये मेरी पत्नी ही मेरा दुश्मन है, लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे के शत्रु नहीं है। So when Bible says love your enemy, what does it mean? On what basis enmity? That's important. देखिए, परमेश्वर जब कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, तो यहाँ पर उसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे शत्रुता क्या है। So we need to do little analysis and what kind of enmity and what does loving enemy means? What does pray for the enemy means? So we need to do little analysis and then work accordingly. तो हमको क्या करना पड़ेगा प्रियो, यहाँ पे हमको थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा कि शत्रुता होती क्या है, और परमेश्वर जो कह रहे हैं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उसका क्या मतलब है, तो उसके लिए थोड़ा हमें वहां पे अध्ययन करना पड़ेगा। Yeah, let me proceed further. We are trying to understand gospel according to Luke. आइए हम लूका रचित सुसमाचार के जो अध्ययन कर रहे थे उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। So let us see introduction about Dr. Luke. तो आइए हम जो लूका जो वैद्य है उसके परिचय को देखेंगे। Colossians chapter 4, verse 14, Apostle Paul says that this Luke is a medical professional physician. And so we say और he's a Dr. Luke. और लूका की किताब, सॉरी, कुलुसियों की किताब 4 के 14 में जब पौलुस जो है वो लूका का परिचय देता है, तो वो कहता है कि वो एक वैद्य है। तो हम समझ सकते हैं कि लूका एक वैद्य था अपनी सेवा से, He is not an apostle. और वो एक प्रेरित नहीं था। But there were few struggles in accepting as Luke's gospel to be one of the canonite scripture. व्हाट दैट मीन अंकल? Canonization. I think I shared with you what canonization means while I say the doctrine on bibliology. Canonization is the process where theologians studied the literature and it was decided which one to be added one among 66, which one should not be added one among the 66. Finally, it was framed saying that this is the word of God. और कैनोनाइजेशन का ये मतलब है प्रियो कि जो बाइबल के स्कॉलर हैं, थियोलॉजियंस हैं, उन्होंने अध्ययन करते हैं कि जितने भी जो पत्र हैं उसमें से कौन सी चीजें बाइबल के में शामिल की जा सकती हैं, और बाइबल का वचन है, उस प्रक्रिया को कैनोनाइजेशन कहा जाता है। Canon means scale, और कैनान का मतलब होता है measuring एक, scale. यस अंकल, एक मापने का स्केल जिस पे हम रख कर उसको तुलना करते हैं कि वो वचन का शामिल किया जा सकता है या नहीं। What happened during the first century, even during the silent period, many people wrote many literature, even in the name of apostles, in the name of prophets. आप जानते होंगे प्रियो, जो जो मौन काल था 400 साल का, उस काल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने और बहुत सारे प्रेरितों ने अपनी अपनी बातें लिख दी थी। So there was a lot of confusion, which one has to be accepted, which one should not be accepted. तो वहां पर एक चिंता का विषय था कि किस पत्रियों को शामिल किया जाए और कौन सी पत्रियां बाइबल में शामिल नहीं किए जाएं। Then the church fathers, that means the accepted theologians, those who are the disciples of the early disciples, 12 disciples, they have got their own disciples and followers, and such church fathers gathered together as a council, and then they prayed, they discussed, then they come out saying that this can be the part of the scripture, this cannot be the part of the scripture. Like that, theologians, they have conducted many church councils, and little by little, over a period of time, they have concluded and that this is the a part of the scripture.
और हम देखते हैं प्रियो, जो पुरानी सदी के कलीसिया में जो लोग चर्च के फादर कहे जाते थे, कलीसिया के पिता कहलाए जाते थे, जो कि प्रथम प्रेरितों के चेले थे, ये सभी चेले लोग जो कलीसिया के पिता थे, ये उस समय अध्ययन करते थे और सारे चर्च मिलकर एक साथ काउंसलिंग करके अध्ययन करते थे कि कौन सी पत्रियां सही हैं और कौन सी पत्रियां परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार है, जिसे बाइबल में शामिल किया जा सकता है और किसे शामिल नहीं किया जाना है। इसका वे लोग अध्ययन करते थे। I think what I will do is, after completion of our study, I will try to briefly remind you once again the basic doctrine of bibliology, the basic doctrine of Christ, and basic doctrine of salvation, things like that. Because most of you are very new, and I will try to help you, God willing, in future. और भविष्य में चूंकि आप सब लोग बहुत लोग नए हैं, इसलिए इस बाइबल अध्ययन के बाद में मैं आपको जो बिब्लियोलॉजी है और जो मसीह शास्त्र है, उद्धार शास्त्र है, उसका जो बेसिक कुछ सिद्धांत है वो आपको मैं फिर से बताऊंगा। The question is Ephesians chapter 2, Apostle Paul says the church has to be laid foundation by apostles. जैसे कि इफिसियों की किताब अध्याय 2 में जाएंगे तो वहां पे वचन आप पढ़ेंगे कि कलीसिया की जो नींव रखी गई है वो प्रेरितों ने रखी है। So this is called apostles' doctrine. Whatever apostles taught, that is written, and it is named as apostles' doctrine. और इसीलिए जो प्रेरितों ने जो पत्रियां रखी है, उसी को ही कहा जाता है कि प्रेरितों की ये लिखी हुई पत्री है। But since Dr. Luke is not an apostle, why this book has been accepted as one of the four gospels authenticated as the word of God? तो हम देखते हैं कि जबकि लूका प्रेरित नहीं था, तो वो प्रेरित नहीं है होने के बावजूद भी उसकी पत्री को, उसके सुसमाचार को जिन चारों सुसमाचार से में एक मानकर क्यों ग्रहण किया गया, ये एक सोचने का विषय है। So this I will try to explain you little later. Please remind me if I forget it. और मैं इसे भूल जाऊंगा तो आप इसे याद दिलाएं ताकि मैं आपको इसको आने वाले समय में समझा सकूं। So I will teach you a particular study by name bibliology. और उस समय मैं आपको जो बाइबल का शास्त्र है उसको जब मैं बताऊंगा तब आप उसको याद दिलाइएगा। So as of now, please take these statements and then try to understand. इस सब चीज़ों को लिख लीजिए और मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। So theologians they have made a lot of exercises and ultimately they found that yes, this is the word of God. Although Luke is not an apostle. और बाइबल की जो ज्ञाता है उन्होंने बहुत अध्ययन किया, और चूंकि लूका प्रेरित नहीं था फिर भी उन्होंने अध्ययन करके ये जाना कि लूका का सुसमाचार सही है। Same case with Mark also. Mark was also not an apostle. और मरकुस भी प्रेरित नहीं था और मरकुस के लिए भी यही बात थी। Yeah. So he's a companion of Apostle Paul. We find it in the book of Acts. There are few sections with we. Wherever we find we, that means Luke was also there in the party. और हम देखते हैं कि जो लूका की जो सेवकाई थी उसमें वो कहीं ना कहीं पौलुस के साथ भी पाए जाते हैं। जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं उन प्रत्येक भागों में जहाँ पौलुस हम शब्द का उपयोग करता है, उन हम में पौलुस के साथ लूका भी है। Bible scholars says that they say that Dr. Luke is from Antioch Church. और जो बाइबल के स्कॉलर ज्ञाता हैं वो बताते हैं कि लूका जो है वो अंताकिया की कलीसिया से संबंधित थे। And he is the only Gentile author in the Bible. और बाइबल में पता चलता है अध्ययन करने से कि ये जो लूका है वो केवल एकमात्र अन्य जाति हैं जिन्होंने लेखक के रूप में बाइबल लिखा है। He wrote to Theophilus. और ये जो लूका ने अपनी जो किताब लिखी है सुषमाचार, ये थियोफिलुस को लिखी है। Please turn with me to Luke's Gospel, chapter 1. लूका की किताब एक अध्याय मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। Luke's Gospel, chapter 1. I am reading first four verses. In as much as many have taken in the hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilled among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and the ministers of the word delivered them to us, it seems good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write
to you an orderly account, most excellent Theophilus, that you may know the certainty of those things in which you are instructed. और लूका की सुसमाचार की किताब उसका पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन, यहाँ लिखा है कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनको तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। He addressed this gospel to a person. Maybe he is an influenced politician or influenced lawyer by name Theophilus. और यहाँ लूका इस बात को बताता है कि उन्होंने ये सुसमाचार थियोफिलुस के लिए लिखा है। हो सकता है ये राजनीति से जुड़े हुए थे या तो किसी वकालत से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिसके लिए उन्होंने ये खत सुसमाचार लिखा है। He is a historian. और हम देखते हैं कि लूका जो है एक इतिहासकार था He is more or less like a journalist. और लूका जो है वास्तव में एक पत्रकार जैसे चीजों की खोज करके लिखने वाला व्यक्ति था। When we read the whole gospel according to Luke, we understand that he goes to each person and then takes the data and properly narrates and properly sets in order the beautiful gospel we find from beginning to the end. और लूका के बारे में हम देखते हैं कि वो प्रत्येक लोगों से मिले और उन्होंने प्रत्येक लोगों की अच्छे से विषयों की अच्छे से खोजबीन की, जांच की और उन्हें व्यवस्थित रूप से उन्होंने लिखा है। He also wrote the book of Acts. और लूका ने ही प्रेरितों के काम की किताब भी लिखी है। Acts also written addressing to the person Theophilus. और जो प्रेरितों के काम है वो भी थियोफिलुस को ही लिखा गया है। You may have a question, why? Why to Theophilus? What is the purpose? Who is this man? और आपके पास एक सवाल हो सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य जो कौन है, थियोफिलुस कौन है जिसको ये खत लिखा गया और फिर ये पत्रियां लिखी गई है। After completion of book of Acts, you will be able to understand more. और जब आप प्रेरितों के काम को पूरा पढ़ लेंगे तब इसे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। You know that Apostle Paul was arrested and he stood before the King Caesars. और आप जानते हैं कि पौलुस को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे राजा जो है कैसर के सामने उसे प्रस्तुत किया गया था। So the church leaders of Jerusalem, Pharisees and Sadducees and the chief priests, they brought accusation against Paul, and Paul said, I will stand before Caesar. और जो पौलुस है उसके खिलाफ में सदुकी लोग, फरीसी लोग, यहूदी लोग, सभी लोग उनके ऊपर आरोप लगाए थे। इसलिए और जो पौलुस है उसने भी दुहाई दी कि मुझे कैसर के सामने उपस्थित होना जरूरी है। So Theophilus is the lawyer who is representing Apostle Paul, who is defending Apostle Paul. तो हम देखते हैं कि थियोफिलुस जो है वास्तव में एक वकील हैं जो पौलुस की वकालत करते हैं। So Dr. Luke is gathering all the data and supplying to Theophilus so that Theophilus may represent Apostle Paul, and he will plead on behalf of Apostle Paul, saying that Apostle Paul is not guilty because of gospel this, and then accept the apostle this and this. And that's the reason why Dr. Luke did all this wonderful historical work. और हम देखते हैं कि लूका ने जो इतने विस्तृत रूप से और मेहनत करके जो इतिहास को लिखा था और ये थियोफिलुस को लिखा था, इसमें हम देखते हैं कि थियोफिलुस ने कहीं ना कहीं पौलुस को बचाने के लिए और कि इस चीज को साबित करने के लिए कि वो एक प्रेरित है, उसके लिए लूका के द्वारा लिखी गई सुसमाचार और प्रेरितों के काम को उपयोग किया इस बात को साबित करने के लिए पौलुस की सेवा सही है करके। What a beautiful history. What a beautiful history. Happened some 2000 years ago. But when we read now, we get a beautiful picture of the Lord Jesus Christ himself and a beautiful picture of the Acts of the Apostles. और प्रियो ये 2000 साल पहले लिखी गई पुस्तक है
परंतु आज हम इसको अध्ययन करते हैं तो कितना सुंदर रीति से हम यीशु मसीह की पूरी जो उनके जीवन को और परिचय को देखते हैं, और साथ ही प्रेरितों के काम को हम कितने अच्छे से आज अध्ययन कर पाते हैं। That is the beauty of the Word of God. यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता है। And he concentrated more on Perian ministry of Jesus Christ. और लूका ने बहुत ध्यान दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई जो पेरिया क्षेत्र में हुई थी उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। He must have wrote during the time of AD 60 to 62, during which time Apostle Paul was there in Roman jail. In Acts chapter 28, we find that scene. और प्रियो, जो लूका ने ये जो किताब लिखी है उस समय एडी 60 से 62 वर्ष का समय था, और ये वही कार्यकाल है जब पौलुस जो है वो रोम की जेल में बंद था। And the theme of the book of Gospel according to Luke is the Savior of the world. Luke's Gospel, chapter और लूका 19 के and verse 10. यस अंकल। और लूका की किताब 19 अध्याय के 10 में अब जाएंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। उस हिसाब से हम लूका की किताब की एक जो थीम है या मुख्य जो संदेश है वो देखते हैं कि संसार का उद्धार करता। Every evangelist writing the gospel, single point agenda, what they are saying is Jesus of Nazareth is God and he is the Savior. Believe him. और जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं जिन्होंने सुसमाचार लिखा है उन सब का एक मुख्य उद्देश्य है, एक संदेश है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो इस जगत का उद्धार करता है। May it be a miracle, may it be a healing, and may it be some kind of preaching. Ultimate goal is Jesus of Nazareth. He is not just ordinary man. He is God and he is Savior. Because of so and so reason. And they explained all the reasons. और इन सारे सुसमाचार में ये बातें, चाहे यीशु मसीह ने चमत्कार किया हो वो लिखा हुआ है, या उन्होंने जो चंगाई किया है वो लिखा हुआ है, लेकिन इन सारे सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में लिखने का यही उद्देश्य है कि जो नासरत का यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो जगत का उद्धार करता है। So whenever we preach gospel, end of gospel must reach to the climax of explanation of the very Jesus Christ, that he is the Savior, he is God, and not any man, not any system, and nothing else. और ये जो सुसमाचार है इसकी पूरी जो अंत में आप जाएंगे तो ये सुसमाचार का सार है कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, जो वो परमेश्वर है, और वो जगत का उद्धार करता है, कोई और मनुष्य से उद्धार नहीं है। ये बातें सुसमाचार में हम देखते हैं। So we have seen that, the gospel is divided into 5 parts. The life and ministry of Jesus Christ is divided into 5 parts. First one is up to baptism and temptation. We find it in first 4 verses. And for about 30 years, Luke explains. We don't find it in Matthew. We don't find it in Mark. We don't find it in John. और हम देखते हैं प्रियो की सुसमाचार को शुरू से हमने देखा है कि अध्ययन करने के लिए हमने 5 भागों में बांटा है। उसमें से यहाँ जो पहला भाग है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा और जो परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है, और विशेषकर जो प्रभु यीशु मसीह ने 30 वर्ष की उम्र तक जो बातें सामना किया उसके बारे में लूका ने लिखा है, जबकि वो बातें मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में नहीं पाई जाती है। And then Galilean ministry, the second part, for about little over 2 years, chapter 4 to chapter 9. और लूका की किताब 4 अध्याय से 9 अध्याय के बीच में जो गलील में प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की थी लगभग 2 साल का, उसके बारे में लिखा है। And here, the third part is Perean and Judean ministry from chapter 9 to chapter 19, maybe for about 4 months or little over 4 months. और 9 अध्याय से लेकर 19 अध्याय के बीच में लूका की रचित सुसमाचार में यहूदिया की जो पेरिया और यहूदा की जो दोनों की सेवकाई है उन क्षेत्रों की वो लिखा है, जो लगभग 4 महीने के समय का था। And then Passion Week, just 1 week, chapter 19 to chapter 23, it's called Passion Week. That's a fourth part. और जो ये लूका रचित सुसमाचार का चौथा भाग है जिसे हम दुख, प्रभु यीशु मसीह के दुख के सामना करने का सप्ताह बोलते हैं, वो 19 अध्याय
से लेके 23 अध्याय के बीच में है, वो एक हफ्ते का समय है। Hope you remember that when I shared about Matthew, when I shared about Mark, I did not talk about fourth part and fifth part. I only talked about first three parts. आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब हमने मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ा है, तो उसमें हमने ये जो चौथा और पांचवा भाग है इसका अध्ययन नहीं किया है, केवल हमने शुरू के 3 भागों का ही अध्ययन किया है। So what I do is after completing John's gospel, then I'll exclusively talk about this 1 week, what actually has happened. I will try to put all these four gospels in proper order so that you'll have a clear picture of understanding what the Lord Jesus Christ did during this past 1 week. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख का सामना किया हो एक अध्याय उस एक हफ्ते में, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये बातें हम यूहन्ना के सुसमाचार को पूरा करने के बाद एक साथ अध्ययन करेंगे, ताकि आप उसे अच्छी रीति से समझ सकें। So the fifth part is called post-resurrection for about 40 days. We find it in chapter 24. और 24 अध्याय लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो बाद की घटना है उसके बारे में हम देखते हैं। And in this gospel, according to Luke, we will find narration, discourse, narration or discourse. The difference is discourse is formal, a systematic order. Narration is just like a story form. We find miracles and healings and parables. और यहाँ लूका रचित सुसमाचार को भी हम अध्ययन करेंगे, तो लूका में भी जो वचन लिखा है वो कहानी के रूप में लिखा है, दूसरा प्रवचन के रूप में लिखा हुआ है, एक व्यवस्थित रूप से, तीसरा जो है आश्चर्य कर्म और चंगाई को लिखा हुआ है, और तीसरा हम देखते हैं कि दृष्टांत वहाँ लिखा हुआ है। Why I have said as two items as narration and discourse is very important. और यहाँ आप देखे होंगे कि सबसे पहले बिंदु में हमने कहानी अर्थात निरेशन और डिस्कोर्स अर्थात प्रवचन, ये दोनों भाग यहाँ क्यों लिखा है? Because while interpreting, principles of interpreting narration is different, principles of interpreting discourse is different. और मैंने ऐसे अलग क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो कहानी की जो व्याख्या है वो अलग है, और जो यहाँ प्रवचन की जो व्याख्या का सिद्धांत है वो अलग है। I will take a different class and I'll explain you. और इसका एक जब हम अलग अध्ययन का क्लास लेंगे तब आपको हम समझाएंगे। This is called the genre, literary genre. और इसको हम कहते हैं जो लिखने की जो एक विशेष जो इसकी जो genre जिसे genre बोल दीजिए, कोई बात नहीं। यस अंकल, लिखने की जो विशेष व्याकरण या कुछ जो जेनरा होता है इसका, वो एक अलग है, उसको हम समझेंगे। So when you see the newspaper, you don't find everything as of one single format. आप जब एक समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहां पे एक ही रूप में सब चीजें नहीं लिखी गई होती You है। will have some place for editorials, आप देखे होंगे वहां पे अलग अलग जो संपादन की चीजें जो है वो लिखी गई होती है। and some there are few some articles of different kind. आप देखे होंगे कि वहां पे अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वो लिखी गई होती हैं। In similarly in the Bible also there are different literary genres. और उसी प्रकार बाइबल में भी अलग अलग लेखन की एक शैली होती है। There's something called narration. और ये जो लेखन की अलग अलग शैली होती है, इसमें हम कुछ को कहते हैं कि ये कहानी है। For example, the book of Genesis, it is in a narrative format, just like a story format. जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि वो एक कहानी के रूप में लिखी गई है। And again, we have got poetic format. और एक चीज और होता है जिसे हम कहते हैं कि कविता के रूप में लिखा गया है कोई And we चीज। have prophetic format. और हम एक बार एक चीज कह सकते हैं कि भविष्यवाणी के रूप में कोई चीज लिखी गई है। And then wisdom genre. और उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धि के शैली में कुछ चीजें लिखी गई है। We also have something like an apocalyptic genre that's called Revelation or Ezekiel or Daniel and a few parts of other prophetical literature. और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो है जो लेखन की शैली है वो भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई शैली है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य है, दानियल की पुस्तक है, और अन्य पुस्तकें हैं।
Oh, brother, there's much to say, but we need to definitely learn all these things. Otherwise, we will not be able to preach and do justice properly. We'll be, you know, what is written something and we say something else. There's a danger of doing certain great mistakes. और प्रियो, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा अध्ययन करने का विषय बाकी है, वैसा ही बात है। और ये सब इसलिए पढ़ना है प्रियो कि कहीं हम बड़ी गलती ना कर दें कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और बता दें। And then let's see the first part, the introduction part. तो आइए हम लूका का जो है वो परिचय के भाग को देखेंगे। So, introduction, we find about Zacharias. We see the angel visiting Mary, and then Mary visiting Elizabeth. We see the song of Mary, and we find things about John the Baptist, and then Zacharias' prophecy. With that, we will find the chapter 1 concluded. एक अध्याय लूका की किताब में आप देखेंगे, परिचय है। उसके बाद जकरिया जो जकरिया जो याजक है उनकी सेवा के बारे में लिखा है। उसके बाद मरियम के पास जो स्वर्गदूत आए थे उसके बारे में लिखा है। उसके बाद मरियम जब एलिजाबेथ से मिलने जाती है उसके बारे में लिखा है। उसके बाद मरियम का गीत लिखा हुआ है। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा दाता का वर्णन है। और आखिरी में जकरिया के द्वारा की गई भविष्यवाणी है। And then in the second chapter, we find about the birth of Jesus Christ, and then angels and shepherds visiting and the baby Jesus Christ, and then shepherds' circumcision, and then Simeon, Anna, like that. और दूसरे अध्याय में आप देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है। उसके बाद जो स्वर्गदूत जो चरवाहों से के पास आए थे बताने के लिए वो लिखा है। इसके बाद चरवाहों ने यीशु मसीह को जाके चरनी में देखा था उसके बारे में लिखा है। इसके बाद यीशु मसीह के खतना के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद सिमोन के बारे में लिखा है और हन्ना के बारे में भी लिखा हुआ है। And then in the third chapter, we find John the Baptist and baptism of Jesus Christ, genealogies, temptation, and Jesus Christ up to 12 years. And then Jesus Christ visited Jerusalem, and whole, that is narrated there. और तीसरे अध्याय में आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में लिखा है। इसके बाद यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद वंशावली लिखा हुआ है। वंशावली के बाद जो यीशु मसीह का परीक्षा हुआ था वो लिखा हुआ है चौथे अध्याय में। उसके बाद यीशु मसीह का जो 12 साल की उम्र तक जो बातें थी वो लिखा है। और उसके बाद किस प्रकार 12 साल की उम्र में वो यरूशलेम के मंदिर में गए थे वो लिखा हुआ है। And then the second part, Galilean ministry, we find Jesus' ministry at Galilee. He was at synagogue, and because they rejected Jesus Christ, they wanted to kill him. They actually drove him away. For that reason, he went to the Galilee. और हम देखते हैं कि जो दूसरी सेवकाई है वो प्रभु यीशु मसीह की गलील में थी। और वो गलील में सेवा किए आराधनालय में। और वो एक नासरी के रूप में नाजरत में सेवा किए। और हमने देखा कि वहाँ पे जब उन्होंने प्रचार किया उनका विरोध हुआ और आराधनालय से उन्हें निकाल दिया गया। And then preaching at synagogue, and then 12 apostles chosen, chapter 6, verses 12 to 16. और हम देखते हैं कि जहाँ लिखा है कि उन्होंने आराधनालय में प्रचार किया। और ये भी लिखा है कि छः छः अध्याय के 12 से 16 के बीच में कि उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। And then Beatitudes, chapter 6, verses 20 to 49. Sinful women were forgiven. 7th chapter, 36 to end at Simeon's house. And then 12 disciples sent on mission on chapter 9, 1 to 6. And Peter's confession, chapter 9, verses 18 to 20. Transfiguration, chapter 9, 28 to 36. और उसके बाद देखेंगे प्रियो यहाँ आगे 6 अध्याय के 20 से 49 तक आशीष वचन के बारे में लिखा है। उसके बाद एक पाप पाप से ग्रसित एक जो बहन है जिसके बारे में क्षमा के बारे में लिखा है 7 अध्याय के 36 से आगे। और जो कि सिमोन के घर में हुआ था पापी स्त्री की क्षमा के बारे में। और उसके बाद हम 9 अध्याय का 1 से 6 के बारे में हम 12 चेलों को सेवकाई के लिए भेजने के बारे में देखते हैं। 9 अध्याय का 18 से बीच में हम पतरस के अंगीकार के बारे में सुनते हैं। और 9 अध्याय के 38 से 36 में हम यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में देखते हैं। I have just given you as an outline. और मैं यहाँ पर आप सबको केवल एक जो बाहरी रूपरेखा है वो दे रहा हूँ।
And then he foretold about his death and resurrection three times. Chapter 9, verses 21 to 22, chapter 9, 43 to 45, and chapter 18, verses 31 to 34. और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और भविष्य और जो पुनरुत्थान होगा उसके मृतकों में से जी उठने के बारे में लगभग पहले से ही 3 बार अपने चेलों को बता दिया था। इस लूका रचित सुसमाचार में 9 अध्याय के 21 से 22 के बीच में, 9 अध्याय का 43 से 45 के बीच में, और 18 अध्याय का 31 से 34 के बीच में। And then his miracles and healings in the area of Galilean ministry, unclean spirit at Capernaum, chapter 4, verses 31 to 37. Peter's mother-in-law was healed, and then mob they came to him, and he healed everybody who came to him. और हम यहाँ देखते हैं कि अशुद्ध आत्माओं से चंगाई के बारे में जो कफरनहूम में हुआ था, 4 अध्याय का 31 से 37 के बीच में। दूसरा, पतरस की जो सास बीमार थी उसको चंगा करने के बारे में लिखा है, 4 अध्याय 38 से 39 के बीच में। और इसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ जो बीमारों की थी, जो चंगे होने के लिए आए थे, वो 4 अध्याय के 40 से 43 के बीच में देखते हैं। And then fourthly, there was a great catch of fish, chapter 5, verses 1 to 10. And leper was healed, paralytic was healed, and call of Matthew. And there was a feast, chapter 5, verses 27 to end. और इसके बाद हम देखते हैं प्रियो, जहाँ पर बहुत सारी मछलियों को पकड़ा गया, चेलों ने पकड़ा, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो कोढ़ी लोग थे उनके बारे में लिखा है, 5 अध्याय के 12 से 16 के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं जो लकवा से ग्रसित लोग थे उनके बारे में लिखा है, 5 अध्याय के 17 से 26 के बीच में। और वहाँ पे मत्ती की बुलाहट के बारे में, और जो जो एक भोजन रखा गया था बहुत बड़ा, उसके बारे में हम देखते हैं 5 अध्याय के 27 से आगे वचनों के। And then withered hand was healed on Sabbath day. And then great mob was healed again. Centurion servant was healed. A dead was raised. He was the widow's son, chapter 7, verses 11 to 17. और उसके बाद हम देखते हैं 6 अध्याय के 6 से 11 के बीच में जो सूखे हाथ वाले व्यक्ति की चंगाई के जो सब्त के दिन में हुआ था। उसके बाद 6 अध्याय के 17 से 19 के बीच में बहुत बड़ी एक भीड़ जो आई थी, उसके बारे में देखते हैं। 7 अध्याय के 1 से 10 के बीच में हम सूबेदार का जो सेवक जो चंगा हुआ था उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद 7 अध्याय से 11 से 17 के बीच में जिस मुर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था, विधवा के बेटे के बारे में, उसको हम देखते हैं। And then 12th miracle was a storm rebuked, it became calm. Demon possessed was healed. Dead to life again, Jairus' daughter, young girl, chapter 8, verses 40 to end. And then 5,000 fed with 5 loaves and 2 fishes. We find it in chapter 9, verses 10 to 17. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो तूफान को शांत करने के बारे में जो घटना है, वो लूका 8 के 22 के बीच से 25 के बीच में हुआ था। उसके बाद जो 8 अध्याय के 26 से लेकर 39 के बीच में दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति की चंगाई थी, उसके बारे में है। उसके बाद 8 अध्याय के 40 से लेकर आगे जो याईर की जो बेटी मर गई थी, जिसके पुनः जीवन यीशु मसीह ने दिया, उसके बारे में है। और उसके बाद 5,000 लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली, उस आश्चर्य कर्म के बारे में लिखा है, 9 अध्याय के 10 से 17 के बीच में। So during these Galilean ministry, there were approximately 15 miracles or healings are noted. Not that only 15, there could have been many other, because Apostle John says that we can't write. If we can write, it's not possible. Only what is required, that only are recorded there. और हम देखते हैं कि गलीलियन सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे 15 प्रकार के आश्चर्य कर्म चंगाई किया बोल के लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु ने और भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए थे जो इस किताब में लिखे नहीं गए, क्योंकि वो अगर लिखे जाते तो इतनी बड़ी बाइबल बन जाती कि जगत में भी नहीं समाती। ये बात यूहन्ना के लिखने वाले लेखक कहते हैं। And then we find the parables, the sower parable, chapter 8, verses 14 to 54 to 15. और उसके बाद हम एक बीज बोने वाले का दृष्टांत देखते हैं, जो कि 8 अध्याय के 4 से 15 के बीच में है। And then there are narrations and discourses, resurrection at Samaria, cost of discipleship, 2 times, chapter 9, verses 23 to 26, and chapter 9, 57 to 62. And then 70 disciples sent on mission, chapter 10, verses 1 to 20. That's in Perean and Judean ministry, third part, chapter 9 to 19, for about 4+ months.
हम देखते हैं प्रियो 9 अध्याय से लेके 19 अध्याय के बीच में जो लूका ने की समाचार में लिखा है, पेरिया क्षेत्र में और यहूदिया के क्षेत्र में जो यीशु मसीह ने सेवा किया 4 महीने में, उसके बारे में लिखा है। यहाँ कहानी और प्रवचन दोनों लिखा हुआ है, जहाँ पर 9 अध्याय की 51 से 56 के बीच में सामरिया में जो प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया गया था उसके बारे में लिखा है। चेला बनने के लिए जो कीमत चुकाई जाती है उसके बारे में 9 अध्याय का 23 से 26 और 9 अध्याय का 57 से 62 के बीच में लिखा है। साथ ही 70 चेलों को जो प्रभु ने सेवा के लिए भेजा था उसके बारे में 10 अध्याय का 1 से 20 के बीच में लिखा है। And then Mary and Martha, chapter 10, verses 38 to end, they requested to teach them what prayer is. And then he talked about prayer, chapter 11, verses 1 to 4, 5 to 8, and 9 to 13, seeking a sign. Then Lord replied marvelously. We find it, chapter 11, verses 29 to 32. And he talked about the narrow way and the broad way, chapter 13 verses 22 to 24, and then talking about the salt, if it is tasteless, how it would be, chapter 14 verses 34 and 35. और उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ कहानी और प्रवचन के रूप में मरियम और मार्था की कहानी लिखी है, 10 अध्याय के 38 से लेकर आखिरी वचन के बीच में। प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, 11 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन के बीच में। उसके बाद जो लोग स्वर्गीय चिन्ह की खोज में थे उस खोज के बारे में लिखा है, 11 अध्याय का 29 से 32 के बीच में। और जो सकरे मार्ग पर चलने के बारे में यीशु मसीह ने सिखाया था, वो सकेत मार्ग के द्वार के बारे में 13 अध्याय 22 से 24 के बीच में लिखा है। और जो स्वादहीन नमक जिसका स्वाद बिगड़ जाता है उसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने 14 अध्याय का 34 से लेकर 35 के बीच में लिखा। And then he talked about the rich man Lazarus, and talking about the kingdom of God, rich young ruler, and Zacchaeus, chapter 19 verses 1 to 10. इसके बाद हम देखते हैं कि जो धनी व्यक्ति और जो लाजर की कहानी है वो 16 अध्याय के 19 से 31 के बीच में है। उसके बाद परमेश्वर का राज्य की हम तुलना किससे करें, वो बातें 17 अध्याय का 20 से 37 के बीच में है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति जो अनंत जीवन के बारे में पूछने आता है, उसका उसका वर्णन 18 अध्याय का 18 से 23 के बीच में है। और जक्कई की कहानी 19 अध्याय का 1 से 10 के बीच में। Please remember, this is the narration and discourse, and the background is at the Parian and Judean ministry during this time, and the duration also is mentioned here. और यहाँ जितनी घटनाएं हम देख रहे हैं प्रियो, ये कहानी और प्रवचन है। और ये जो घटनाएं हुई थी पेरिया में और यहूदिया की सेवकाई के समय में हुई थी, जो 9 अध्याय के से लेकर 19 अध्याय के बीच में लूका ने लिखा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 4 महीने सेवा किया था। And then miracles and healings. Woman bent over. It's not bet over, bent over. In the 13th chapter, 10 to 11, 10 to 17, and then man with dropsy and 10 lepers were healed. Only, one reported back. And blind man was healed, chapter 18, verses 35 to 42. और यूं जब हम आश्चर्य कर्म और चंगाई की बात करते हैं तो 13वें अध्याय में सप्त के दिन में 10 वचन से लेकर 17 वचन के बीच में एक कुबड़ी स्त्री के बारे में, चंगी होने के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद 14 अध्याय के 1 से 6 वचन के बीच में हम जलंधर के रोग से चंगे होने वाले व्यक्ति को देखते हैं। 17 अध्याय का 11 से लेकर 19 के बीच में 10 कोढ़ियों की चंगाई के बारे में देखते हैं। और 18 अध्याय के 35 से 42 के बीच में अंधे मनुष्य की चंगाई के बारे में देखते हैं। And then parables, Good Samaritan, rich fool, barren fig tree, mustard seed, leaven, and the great dinner. These are all the parables, 6 parables. और जो दृष्टांत हैं, जिन 6 दृष्टांतों के बारे में हम देखते हैं, वो पहला है एक अच्छे सामरी पुरुष के बारे में। इस दृष्टांत जो है 10 अध्याय का 25 से लेकर 37 के बीच में। उसके बाद एक जो धनी व्यक्ति जो मूर्ख था, उसके बारे में हम देखते हैं दृष्टांत के रूप में 12 अध्याय का 13 से लेके 21 के बीच में। उसके बाद हम एक फल रहित अंजीर के वृक्ष के बारे में दृष्टांत देखते हैं 13 अध्याय का 6 से 8 के बीच में। उसके बाद राई के दाने का दृष्टांत देखते हैं 13 अध्याय का 18 से 19 के बीच में। उसके बाद हम जो खमीर का दृष्टांत देखते हैं 13 अध्याय का 20 से 21 के बीच में। और बहुत बड़े भोज का हम दृष्टांत देखते हैं 14 अध्याय का 15 से 24 के बीच में। There are few more parables. Parable number 7, lost sheep, lost coin, lost son, unjust steward, widow and unjust judge,
Pharisee and tax collector, and then 10 minas about the parable about 10 minas, and then the wicked wine dressers. These are all the parables, totally 14 parables in the gospel according to Matthew. और इसके बाद जो दृष्टांत है उसको भी हम देखते हैं, जो लगभग 14 दृष्टांत है उसमें से 7वें नंबर का दृष्टांत है जिसमें खोई हुई भेड़ के बारे में हम देखते हैं, 15 अध्याय के 1 से 7। उसके बाद खोया हुआ सिक्का, 15 अध्याय का 8 से 10। उसके बाद खोया हुआ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र, 15 अध्याय का 11 से 32। उसके बाद एक चतुर भंडारी के बारे में हम देखते हैं, 16 अध्याय के 1 से 9 के बीच में। उसके बाद एक विधवा और अधर्मी न्याय के बारे में, 18 अध्याय का 1 से 18 के बीच में। और उसके बाद फरीसी और जो चुंगी लेने वाले थे उनके बारे में, 18 अध्याय का 9 से 14 के बीच में। और उसके बाद 10 मुहरों का जो दृष्टांत है वो 19 अध्याय के 11 से 27 के बीच में देखते हैं। और उसके बाद हम 20 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर 19 वचन के बीच में दुष्ट किसानों के बारे में दृष्टांत देखते हैं। And then the fourth part, Passion Week 19 to 23, we find the triumphal entry. And Jesus weeps over the temple, cleanses the temple, authority was questioned, and he was questioned whether to pay tax or not, and the Sadducees raised question. He answered all of them. उसके बाद हम आगे देखते हैं जो दुख भोगने वाले सप्ताह के बारे में, जो 19 अध्याय से 23 अध्याय के बीच में एक हफ्ते की घटना है। उसमें हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ था यरूशलेम में, 19 अध्याय 28 से 40 के बीच में। मंदिर में जो उन्होंने रोया था, उसको मंदिर को देखकर, वो 19 अध्याय के 41 से 44 के बीच में। मंदिर को शुद्ध उन्होंने किया था, उसके बारे में 19 अध्याय का 45 से 48 के बीच में। और अधिकारों के विषय में जो सवाल किया गया था वो 20 अध्याय का 1 से 8 के बीच में। और जो कर यानी कि टैक्स पटाना सही है या नहीं, उसका नियम के बारे में जो सवाल किया गया था उसके बारे में लिखा है 20 अध्याय का 20 से 26 के बीच में। और सदुकियों ने जो प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया था वो लिखा है 20 अध्याय का 21 से 40 के बीच में। And then widow's mite, signs of the times, end of age, and then Passover, chapter 22, verses 7 to 13. उसके बाद हम देखते हैं कि विधवा का जो दान है उसके बारे में लिखा है 21 अध्याय का 1 से 4 के बीच में, जो कंगाल विधवा ने दान दिया था उसके बारे में। उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में जो चिन्ह था और जो घटनाएं होंगी अंत के दिनों में, उसके बारे में हम देखें 21 अध्याय का 5 से लेकर आखिरी वचन तक। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो भोज लिया था, प्रभु भोज, उसके बारे में हम देखते हैं 22 अध्याय का 7 से 13 के बीच में। So after Passover, it was converted to the Lord's Supper, chapter 22, 14 to 23, and then prayer at Gethsemane, and then he was arrested there. Peter's denial, we'll find one after the other. और फसह का जो भोज हुआ था, उस फसह के अंतिम भोज के बाद में प्रभु भोज हुआ था 22 अध्याय के 14 से 23 के बीच में। गतसमनी का प्रार्थना 22 अध्याय 40 से 46 के बीच में। और प्रभु यीशु मसीह को जो धोखा देकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, वो 22 अध्याय का 47 से 53 के बीच में। और उसके बाद जहाँ पे पतरस ने इनकार किया था 3 बार, वो बातें लिखी है 22 अध्याय का 54 से 62 के बीच में। And then he was arrested, crucifixion, and death. We will find all these things. He was mocked and beaten. He was handed over to the Pilate, handed over to the Herod, and then back to Pilate. And then he sentenced, carried the cross to Golgotha, crucifixion, and death, the burial. All these things we find from chapter 22, 63 to and 23 end. और प्रभु यीशु मसीह का जो गिरफ्तारी हुआ था, उनका जो क्रूसीकरण हुआ था और उनकी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है 22 अध्याय में, उसके 63 से 71 के बीच में, जहाँ यीशु मसीह को धोखा देके उनको आरोप लगाया गया और पीटा गया। उसके बाद उनको पिलातुस के हाथ में सौंप दिया गया 23 अध्याय के 1 से 4 के बीच में। उसके बाद राजा हेरोद के पास भेज दिया गया 23 अध्याय का 6 से 11 के बीच में। फिर वापस पिलातुस के पास न्याय के लिए लाया गया 23 अध्याय का 12 से 25 के बीच में। हम उसे देखते हैं कि उनको गुलगुत्ता के पहाड़ी पर क्रूस के साथ ले जाया गया 23 अध्याय का 26 से 32 के बीच में। उनका क्रूसीकरण हुआ और मृत्यु हो गई, वो घटना हम देखते हैं 23 अध्याय का 33 से 49 के बीच में है। फिर उनको दफना दिया गया, वो घटना हम 23 अध्याय का 50 से अंतिम तक देखते हैं। So, and then we find the resurrection and post-resurrection.
chapter 24, verses 1 to 12, and then he wrote to Emmaus post-resurrection appearances to two people, and then to his disciples, and then to his disciples in the context of Great Commission, Ascension. With this, the Luke's Gospel is completed. और उसके बाद हम यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ था और उसके बाद की घटना को देखते हैं। जो पुनरुत्थान हुआ था, मृतकों में से जी उठने की घटना वो 24 अध्याय का 1 से 12 के बीच में। उसके बाद इमाउस के मार्ग में जो दो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया था, वो घटना हम देखते हैं 24 अध्याय का 13 से 27 और 24 अध्याय का 28 से 32 के बीच में, इमाउस की घटना। उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाई दिया था जी उठने के बाद, वो 24 अध्याय का 36 से 43 के बीच में। जो महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, वो है 24 अध्याय का 44 से 49 तक। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, स्वर्गारोहण उनका हो गया, वो है 24 अध्याय का 50 से आखिरी तक। So this is called a survey, a brief, what is called a summary of the book, so that you'll be able to understand all these 24 chapters just within 1 hour. और प्रियो, इसे सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण का मतलब होता है कि बहुत बड़े अध्ययन को हमने संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया है। और अब लूका की पूरे 1 अध्याय से लेकर 24 अध्याय को आप 1 घंटे में आप थोड़ा सा इसे समझ सकते हैं। So if it is a Bible study, then we take a passage and we'll try to understand the context, and we will try to understand step by step and how the author is trying to say, and then how it has to be interpreted, and then we'll try to apply. और अगर ये बाइबल अध्ययन होता, चूंकि ये सर्वेक्षण था इसलिए हमने पूरे 24 अध्याय को 1 घंटे में देखा। अगर ये बाइबल अध्ययन होता तो एक एक वचन जो किसी पैराग्राफ से लेकर हम उसका अध्ययन करते, वो किस संदर्भ में लिखा गया है उसको पढ़ते, उसकी व्याख्या को पढ़ते और उसको कैसे उपयोग करते हैं वो सीखते। May the Lord bless this word and speak to us accordingly for His glory, and prepare us to be good and faithful Bible teachers. और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें तैयार करे कि हम एक अच्छे बाइबल के शिक्षक, सिखाने वाले बन सके। Thank you and God bless you. धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।